Hello, dear aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to another session on another very important topic. We'll be covering another part of speech today, and that is verbs. As we had understood, nouns, pronouns, adjectives. So today in detail, we'll be understanding that what is a verb, what are the different types of verbs, and what kind of questions can we get related to verbs. Then we'll also be talking about subject-verb agreement. That is also one of the favorite topic in which you get questions in your all competitive exams. So firstly, understanding what are verbs, because firstly we'll be brushing upon on your basics that you have covered up till now, what you have understood about verbs, and then we'll be going to some advanced level and understanding some more grammatical rules that are related to this particular topic. So as you all might be knowing that verb is action word, है ना. Verbs को हम simply क्या बोलते हैं? Action words. These are phrases that tell us about action. They tell us about a particular condition. They tell us about a experience. So verbs can express what kind of actions. It can be a physical action. It can be something related to some mental action, and it can also be something that is state of being. So if I just talk about physical actions, okay, we can divide it into, when we simply say action words, जब हम simply बोल रहे हैं कि verb action words हैं, so we can say that it could be a physical action. Now physical action is like jumping, like I'm writing, I'm swimming, I'm climbing. All these are physical action. But there are some things that you are doing mentally. आप सोच रहे हैं, है ना? Your brain is involved. That is also a action. You're thinking, acting. You're thinking. You're guessing. You are. I'm guessing the answer. I'm pondering. All these are mental actions. And when I talk about state of being, so that means about something to be or to exist or to seem. So all these are coming under verbs. So verbs referring to action, जिनको हम short में क्या बोल सकते हैं? Action verbs भी बोल सकते हैं, that are involving the movement of one's body. Okay, swimming, climbing, body actions involved हैं. Jumping. Okay, so some examples like walk, run, talk, sit. All these are lots of examples where you are involved in some way or the other with your body action. So verbs are extremely important. Every sentence requires a verb. Verb in a sentence is telling us that what the subject is doing. Okay, subject आपके sentence में क्या कर रहा है? तो जैसे nouns बहुत important है sentence में, उसी तरह verbs भी बहुत important है, because अगर हम कुछ बताना चाह रहे हैं, if I'm writing a story, if I'm telling something, so what is happening? What is the action taking place? How am I going to express my full thoughts properly? They can't be properly conveyed. And even simplest sentence, हमने बोला he sings, एक छोटा सा sentence बनाया, he sings, तो हमने एक verb use करा, है ना? She dances. So verb can be a sentence in itself also. अगर हम subject नहीं लगा रहे हैं, हमने बोला sing, drive, jump, it is understood that it is implied that subject is you. So we have to understand that हमें स्कूल लेवल में ये सिखाया जाता है कि verbs जो हैं वो क्या होते हैं? Doing words, है ना? हमें ये सिखाया गया है कि verbs जो होते हैं वो doing words होते हैं, कि हर sentence में जब हमें कोई भी action के बारे में बात करनी है, like रोहित ran away, या she eats chocolates, या the horse gallops. Okay, तो ये हमें बता रहे हैं, action बता रहे हैं. डूइंग वर्ड्स बोल सकते हैं या एक्शन वर्ड्स बोल सकते हैं. अब एक्शन चाहे हमारा फिजिकल एक्शन हो, है ना, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रही है, या वो हमारा कोई ना कोई फीलिंग हो. ठीक है. सो एज वी टॉक्ड अबाउट कि स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, मेंटल एक्शन हो सकता है, कुछ भी हम फील कर रहे हैं. आई बिलीव दिस, ओके, सो आई फील दिस, एक्सपीरियंस, तो ये सब भी हमारे वर्ब्स में आते हैं. मैं आई रिकॉग्नाइज दिस, ओके, कॉम्प्रीहेंड, ये सब जो है आपका वर्ब्स के अंदर ही आता है. So verbs are also referring to
what I'm saying, experience or feelings. Okay, हमेशा movement नहीं है, हमेशा physical action नहीं है. Verbs can also tell us about the experiences. Like I say the word FEEL, feel. I say the word believe. I say the word comprehend. तभी भी मैं verbs की बात कर रही हूँ. Now talking about the types of verbs. Verbs को हम किस तरह से categorize करते हैं? So verbs को हम basically categorize कर सकते हैं दो categories में, main verb and helping verb. ठीक है, सेंटेंस में हम verbs को दो broad categories में डाल सकते हैं. Now when we talk about the main verb can be further divided into transitive and intransitive verb. And the other name for helping verb can be auxiliary. ठीक है, auxiliary verbs, and these can be also further divided into primary helping verb, and second one is modals or modals. So now as we have understood about the main verbs, जो sentence में आपको action बता रहे हैं, main verbs में अगर हम बात करें transitive verb की, तो transitive verb एक वो verb होता है that acts on something. मतलब it needs an object. ठीक है, verb is acting on something, so it requires a direct object in the sentence. So let's look at transitive verbs. Verbs that take a direct object alone are called as transitive verbs. For example, I saw the dog. I saw the dog standing over there. Now, saw here is the main verb in the sentence. But is it a transitive or is it an intransitive? It is a transitive verb because here dog is the object. ठीक है, action किस पे transfer हो रहा है? Dog पे. It is acting on something. She ate the cake. Now ate is the main verb, but object क्या है sentence में? Cake. Action किस पे transfer हो रहा है? Cake पे. So that is the direct object. So it is a transitive verb. So when you ask the question, what? क्या देखा? Dog देखा. क्या खाया? Cake खाया. The postman will give her the letter. क्या देगा postman? Letter देगा. Excuse me. So the postman will give her the letter. तो जो गिविंग का एक्शन है किस पे ट्रांसफर हो रहा है? क्या देगा? लेटर. सो जहां पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो होता है जिस सेंटेंस में वो वर्ब होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब. देन व्हाट इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब? द वर्ब्स व्हिच डू नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब. तो सेम वर्ब कैन फंक्शन एज अ ट्रांजिटिव इन अ सेंटेंस or intransitive in the sentence depending upon how it is used. तो intransitive word वो है that is not acting on something. There is no direct object. Suppose I say they jumped. So jumped यहाँ पे कैसा verb हो गया? Intransitive. या for example I say the dog ran. नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. इट इज नॉट एक्टिंग ऑन समथिंग. ओके, सपोज आई से द रेन फेल. फेल here is what kind of verb? Intransitive verb. It is not acting on something. कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. आई से द ट्रेन stopped suddenly. The train stopped suddenly. Now you have to tell that इस sentence में जो verb है वो transitive है या intransitive है.
या सपोज आई से द बेल rang loudly, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है दैट इज नॉट एक्टिंग ऑन समथिंग, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा वर्ब कैसा हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। आई होप मेन वर्ब्स के ये दोनों क्राइटेरिया क्लियर है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड intransitive. Then when we are talking about the verbs that are referring to a state or a condition, तो यहाँ पे हम to be के सारे फॉर्म्स को यूज करेंगे। जैसे हमने बोला the water is cold, the water is cold, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? is, है ना, referring to a state or condition. I am fine. I write down the sentence. I am fine. तो वर्ब क्या है यहाँ पे? am. So is, am, are, was, were, have, has. ठीक है, ये सारे जो हैं these are examples of verbs that are referring to a state or a condition. So all the forms of the verb to be, है ना, कि सारे verbs जो हैं इस particular category में आ जाते हैं. Suppose I say that X is the largest, so and so place is the largest river या the largest ocean in this continent. Is, आपने is use करा, या आपने बोला it was a joke, है ना, it was a joke. आपने एक सेंटेंस लिखा it was a joke. तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? स्टेट, जो एक्सप्रेस कर रहा है, सॉरी वर्ब क्या है? was, जो एक्सप्रेस कर रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो कभी भी हम is को यूज कर रहे हैं, am को यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, was को यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, सो सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं was, वर्ब को यूज कर सकते हैं जब आप YOU लगाओगे, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा YOU, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप? वर। ओके, I के साथ was, you के साथ were. Then we, when the subject is we के साथ क्या लगाएंगे? were. ठीक है, we के साथ जाएगा were. THEY, they के साथ क्या जाएगा? were. And he, she, it के साथ क्या जाएगा? was. So it is very important to remember these. Now talking in detail about the helping verbs, जिनका दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरीज, है ना, ऑक्सिलरीज। हेल्पिंग वर्ब्स का जो हमारा दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वर्ब दैट इज यूज्ड टू हेल्प अनदर वर्ब। तो इससे आप क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जो दूसरे वर्ब्स को हेल्प करते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में, बिकॉज व्हेन वी राइट अ सेंटेंस, उसी से हमें पता चलता है कि सेंटेंस कौन सी टेंस में है ना, सेंटेंस का मूड क्या है। सो एवरी टाइम यू यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, ओके, वो मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है या पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, या आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है। सो वर्ब दैट इज वेरी सेंसिबल, दैट इज वेरी मीनिंगफुल, दैट इज यूज्ड टू चेंज द अदर वर्ब्स टेंस, मूड और वॉइस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो ऑल द वर्ब्स दैट आर रिटन ओवर हियर, ये सारे वर्ब्स जो हैं किसके एग्जांपल्स हैं? ऑल दीज वर्ब्स आर एग्जांपल्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो है टू डू के फॉर्म्स हो जाते हैं, टू बी के फॉर्म्स हो जाते हैं, और टू हैव के फॉर्म्स हो जाते हैं। तो अगर मैं टू डू के फॉर्म्स की बात करूं तो कौन से हो जाएंगे आपके? डू, डज, डिड, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे? दीज विल बी एग्जाम्पल्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हम बात करें टू हैव के एग्जाम्पल्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स के कौन से हो जाएंगे? हैज, हैव, हैड, ये सब हो जाएंगे। अगर हम टू बी के एग्जाम्पल्स की बात करें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के, टू बी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि इज, एम, आर एंड सो ऑन, जो भी आपके सारे वर्ड्स हो जाएंगे
These will be examples of the forms of to be. So these helping verbs in a sentence, they are very, very important. Just like the main verbs are important, similarly the helping verbs in a sentence are very important because इनका purpose होता है main verbs को assist करना. अगर आपने sentence में has नहीं लगाया, have नहीं लगाया, does नहीं लगाया, did नहीं लगाया, कई बार सेंटेंस में आप ओमिट कर जाते हो, मिस कर जाते हो, तो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली क्या है, इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है. सो हम कौन सी टेंस में सेंटेंस को लिख रहे हैं, उसके लिए वी हैव टू रेफर टू ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज आई से दैट ही रैन अवे, वो चला गया है ना, वो भाग के चला गया, ही रैन अवे. अब अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिखना चाह रहे हो सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना चाह रहे हो सेंटेंस, देन यू हैव टू यूज इज. ही इज रनिंग. ओके, ही इज रनिंग, ही इज ईटिंग, ही इज प्लेइंग. पास्ट टेंस में आप लिखना चाह रहे हो, देन यू विल बी यूजिंग वॉज वर, है ना, वॉज वर. ये सारे आपके वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ही वॉज रनिंग, they were running. So we'll have to use these helping verbs in the sentence to indicate the correct tense of the sentence. Next category of verbs हमारे आ जाएंगे जो आपके helping verbs के second type हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, modal verbs, है ना, modals short में बोल सकते हैं. अब modal verbs बहुत important हैं and बहुत बार questions जो आपके fill in the blanks questions होते हैं वो modal verbs पे आते हैं. Now what do modal verbs do? इनका पर्पस क्या होता है? They are used to express possibility, probability, capability, necessity of something happening in the sentence. अब इससे क्या मतलब हो जाता है हमारा कि इनमें से कुछ ना कुछ तो जो है modal verbs express कर रहे हैं. और modal verbs के common examples कैसे हो जाते हैं, जैसे कि कहीं पे हमने may यूज करा, can यूज करा, तो हम क्या बोलते हैं, expressing the mode or the attitude of a speaker. Suppose I say that permission लेनी है, तो हम यूज कर सकते हैं may. May I go now? May I borrow the books? May I borrow your pen? या फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ किसी को कुछ विश करना है ना, May God bless you, May you live long, है ना, फॉर विश, फॉर प्रेयर, तभी भी हम मे यूज करते हैं. देन हम मे को कॉमनली यूज करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग पर्पस. ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे पास, देन ऑल्सो वी यूज मे. तो अलग अलग पर्पस के लिए, परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम मे को यूज कर रहे हैं, फॉर एक्सप्रेसिंग पर्पस वी आर यूजिंग मे. देन सिमिलरली उसी तरह से हम माइट को यूज करते हैं पोलाइटनेस के लिए. माइट आई बोरो दिस, माइट आई टॉक टू हिम, है ना, मोर पोलाइटनेस के लिए हम माइट यूज करते हैं. देन समटाइम्स हम माइट यूज करते हैं व्हेन समथिंग डिड नॉट हैपन बट इट वाज पॉसिबल, है ना. ही माइट हैव कम इफ वी इनवाइटेड हर, वो आया नहीं पर वो आ सकता था, है ना, समथिंग डिड नॉट हैपन, ही माइट हैव कम इफ वी इनवाइटेड हिम. या हम माइट को यूज करते हैं कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस में. ठीक है, जैसे कि आपने बोला इफ यू इनवाइटेड हर शी माइट अटेंड द पार्टी. ओके, इफ ही केम ही माइट हैव हेल्प्ड मी, अगर वो आया होता तो उसने मेरी हेल्प करी होती. तो मे और माइट को हम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और डिजायरेबिलिटी रिलेटेड टू समथिंग पास्ट एक्शन. ही माइट हैव फेल्ड, हो सकता है वो फेल हो गया हो. इसी तरह से आपका एक और इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब आ जाता है कैन. डू यू ऑल नो व्हेन डू वी यूज कैन इन आवर सेंटेंसेस? टू एक्सप्रेस आवर एबिलिटी. कुछ काम करने की जो हमारी क्षमता होती है, आपकी कैपेबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, तब हम यूज करते हैं कैन. ओके, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस पजल, सपोज आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ. देन कैन परमिशन के लिए जनरली यूज करते हैं. हाँ, यू कैन गो नाउ, ओके, यू कैन टेक माई बुक. देन ऑल्सो वी कैन यूज कैन इन द सेंटेंसेज. या वी कैन से दैट यू कैन गो देयर बाय रोड, आप जा सकते हैं. इसी तरह से कोड मॉडल वर्ब किस लिए हम यूज करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए.
है ना, पोलाइट और कर्टियस वे में जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, देन वी कैन यूज कुड, COULD, कुड एज अ मॉडल वर्ब. कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू लेंड मी दिस पर्टिकुलर थिंग, कुड यूज करते हैं. पास्ट एबिलिटी के लिए भी हम कुड यूज करते हैं, है ना. जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा करता था, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है. व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम, आई कुड डू दिस, आई कुड क्लाइंब द ट्री. या हम कोई जनरल परमिशन की बात कर रहे हैं, है ना. ऑन हॉलीडेज आई कुड डू दिस, मैं ऐसा कर सकता था छुट्टियों में, मुझे ये करने की परमिशन थी, है ना. एंड जब हम इफ कंडीशन लगाते हैं, अनरियल कंडीशंस की बात करते हैं, तभी भी हम कुड यूज कर सकते हैं. जैसे कि इफ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई टू द हिमालयाज, इफ आई हैड सो मच मनी आई कुड डू दिस, आई कुड परचेज दिस थिंग. ओके, अगर मेरे पास इतने पैसे होते आई कुड परचेज अ मर्सिडीज. अनरियल कंडीशंस में भी हम कुड लगाते हैं. आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, है ना. आई कुड हैव बोरोड मनी फ्रॉम यू, मतलब कि मैंने करे तो नहीं, बट आई कुड हैव, मैं कर सकता था, है ना. पास्ट एबिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं व्हेन द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस. तो कुछ ना कुछ पर्पस होता है मॉडल वर्ब्स यूज करने का. या कभी सेंटेंस में हम शुड यूज करते हैं, तो शुड क्या बताता है, हमारी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, है ना. यू शुड डू दिस, है ना, आपको ये काम करना चाहिए. यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तब हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं. तो शुड अगेन इज इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, मतलब तुमने ऐसा नहीं करा. यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज. ओके, तो यहाँ बोलते हैं कंडीशन के लिए, जैसे हम इफ यूज करते हैं उसी तरह से हम शुड यूज कर सकते हैं. शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. जैसे हम इफ यूज करते हैं, इफ को रिप्लेस करके हम शुड यूज कर सकते हैं. देन मस्ट, MUST, मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. यू मस्ट डू दिस, मस्ट क्या बता रहा है, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, है ना. मस्ट क्या बता रहे हैं, नेसेसिटी या एप्लीकेशन. या हम किसी सेंटेंस में जब हम मे की जगह मस्ट यूज करते हैं तो इट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, है ना. इतने बज गए हैं तो आप गेस कर रहे हो टीचर इस टाइम क्लास में होगी. इट इज 5 o'clock, द टीचर मस्ट बी इन द क्लास. या ही हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच, देन वी आर यूजिंग मस्ट. ओके, देन OUGHT, ought. ought क्या बताता है, इट इज यूज टू रिप्लेस शुड एंड मस्ट. और क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी. एडवाइस देना है, ठीक है, कि ought, you ought to do this, you ought to serve your country. Okay, you ought to have done this, है ना. you ought to have been present over here. आपको होना चाहिए था, है ना. ought to के साथ आप have लगा सकते हो, ठीक है. Then we can use used to indicate a habitual action. He used to do this. He used to smoke. He used to play cricket. ठीक है. And WOULD, would क्या बताता है, would को हम यूज कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे would you please do this for me, would you please help me with this thing. Okay, या जैसे हम बोलते हैं I would like to play now, wish, है ना, कोई wish है, I would like to do this. और या some future action in the past, that like he told me that he would give me money. उसने मुझे ऐसा बोला कि वो मुझे पैसे देगा. So, इस तरह से हम सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं. और मॉडल वर्ब्स बहुत सारे हैं, ऑल दीज आर मॉडल वर्ब्स, ठीक है. तो मॉडल वर्ब्स हमें सेंटेंस में जो है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. एक तो हो गए आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और एक हो गए मॉडल वर्ब्स जो एक्सप्रेस करते हैं मोड्स एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. सो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडेज सेशन. We have covered up what are verbs, what are the different types of verbs, that are the main verbs जिनमें transitive और intransitive होते हैं, and helping verbs जिसमें primary helping verbs या auxiliaries होते हैं, और second type of verbs, those are modal verbs. So thank you for today's session. Bye bye all of you and take care.